जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो कल मैंने संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 को पढ़ा था। आज मैं पढ़ूंगी 31 और 31 का। तो चलिए पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 31, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिपील्ड by the Constitution 44th Amendment Act 1978 S 6 WEF 20th June 1979. Saving of certain laws 31st A 31st A आर्टिकल्स क्या कहता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर acquisition of estates etc. Number 1, nothing withstanding anything contained in Article 13, no law providing for A. The acquisition by the state of any state or of any rights certain for a period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property, or C. The amalgamation of two or more corporations either in the public interest of in order to secure the proper management of any of the corporation, or D. The extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurer, managing directors and directors or managers of corporations, or of any voting rights of the shareholders thereof all. Sorry. E. The extinguishment or modification of any rights acquiring by virtue of any agreement, lease or license for the purpose of the searching for or winning any mineral or mineral oil, or of the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or license shall be deemed to be void on the ground that it is the inconsistent with or takes away or abrases any of the rights conferred by Article 14 or Article 19. Article 14 or Article 19. Provided that where such law is a law made by the legislature of a state, the provision of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent. Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the state of any state, and where any land comprised therein held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the state to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force, or any building or structure standing thereon or appertinent thereto,
unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof. Second, number 2. In this article, A, the expression state shall in relation to any local area have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to land tenures in force in that area and shall also include 1. Any jagir, inam or mufti or other similar grant, and in the states of Tamil Nadu and Kerala any Janmam right. Second, any land held under Rayatwari settlement. Third, any land held or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto. Including wasteland, forest land, land for pasture, or the sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land, agricultural laborers, and village artisans. B. The expression rights in relation to an estate include any rights vesting in a proprietor, sub-proprietor, under-proprietor, tenure holder, rayat, under rayat, or other intermediary, and any rights or privileges in respect of land revenue. यानी मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। 31 अनुच्छेद संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा 20/6/1979 से निश्चित कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। नंबर 1, अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी का किसी संपदा के या उसमें किसी अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या खाक किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए या गा 2 या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए या घा निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयर धारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए। वहाँ किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए अनुबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद
14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है, परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उनकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है, जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है, वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को, जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा। जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी। 2. इस अनुच्छेद में का संपदा पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भूधृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है, और इसके अंतर्गत का 1. कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान, और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मम अधिकार भी होगा। का 2. रैयतवारी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी। का 3. कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए दृढ़ या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल। अधिकार पद के अंतर्गत किसी संपदा के संबंध में किसी स्वत्वधारी, उपस्वत्वधारी, अपर स्वत्वधारी, भू धृति धारक, रैयत, अबर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भूराजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं इतना ही पढ़ूंगी, और कल पढ़ूंगी 31 का अनुच्छेद 31 खा यानी 31B कल पूरा कंप्लीट करूंगी। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।